Good morning, students. In today's class, we will discuss about friction. What is friction basically? Friction is a negative force that opposes the motion. Friction has certain properties with it. Number one, friction is a contact force. Friction always works between the two surfaces that are in contact. If the surfaces are not in contact, then no friction will be seen between them. So friction is a contact force. Number two, friction comes into play if some external force is acting on the body that move or try to move the body. फ्रिक्शन सिर्फ तभी एक्शन में आता है जब एक बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा हो, उस बॉडी को या तो चलाने की कोशिश कर रहा हो या चला रहा हो, तो ही फ्रिक्शन काम आएगा. अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है बट रखा है इन द फ्री स्टेट, यानी कोई अदर फोर्स इस सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है, देन फ्रिक्शन विल बी जीरो इन दिस केस. यानी फ्रिक्शन ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, either motion is happening or trying to happen. Number three, friction always work in opposite direction of motion along the surface. यानी अगर दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू मोशन, ये मूविंग फोर्स है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू इट अलोंग द सरफेस काम करेगा. यानी फ्रिक्शन कभी भी हवा में नहीं जाता, ये along the surface काम करता है. Now what is the cause of friction? Friction is caused due to the roughness of the two surface. जिन दो सरफेस के बीच में हमने कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है, उनकी रफनेस उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को डिसाइड करती है. एट माइक्रोस्कोपिक लेवल फ्रिक्शन को अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप देखूं, देन even the smooth looking surface have projections and depressions, or you can say hills and valleys, or you can say irregularities. Projections and depressions होते हैं इन surface में, and while in contact, जब ये surface contact में आते हैं, these projections and depressions of the two surface get interlocked. दोनों surface के बीच में interlocking हो जाती है like this. एक surface दूसरे के साथ interlocking में आ जाता है और एक दूसरे की मोशन को हिंडर करता है, एक दूसरे की मोशन को अपोज करता है. तो वी कैन से फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू रफ सरफेस. लेट अस सी हाउ. दिस इज सरफेस ए, दिस इज सरफेस बी. Although both are appearing smooth surface, but on seeing microscopic level, these two have irregularities. When these two surfaces come in contact, their irregularities, or you can say hills and valleys, or you can say depressions and projections get interlocked with each other. एक दूसरे के साथ interlock हो जाते हैं, and this interlocking opposes the motion, cause the friction. Now types of friction. How many types of friction do you know? Broadly we can classify friction into two categories. First is sliding friction, second is rolling friction. Sliding friction can also be categorized into two categories. Number one, static friction. Number two, kinetic friction. So let us first define sliding friction. The friction that comes into play when one surface slides or try to slide over other is called sliding friction. बॉडी के बीच में तो एक्चुअल में मोशन है या मोशन होने की कोशिश हो रही है, बट स्लाइडिंग है, कॉन्टेक्ट में सरफेस है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. Static friction. Static friction is a part of sliding friction, so definition is almost same. जो पार्ट यहाँ पर try to slide था वो static friction को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो slides है वो kinetic friction को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी इसी डेफिनेशन में दोनों हाइड है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन से मैं इन दोनों को बना सकता हूँ. तो static friction, the friction that comes into play when one surface try to slide over other is called static friction. The surface try to slide but actually don't move. ये चलता नहीं है, इसके ऊपर चल नहीं पाता है. This is also known as friction at rest. Static friction is also known as friction at rest. Important things to note about the static friction. Static friction is a self-adjusting force. ये अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाता है as per the applied force. Maximum value of static friction is called limiting friction.
तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी मोशन तभी इनिशिएट होगी जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर फोर्स लगा देंगे। अगर किसी बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है, किसी सरफेस पेयर के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी -1 न्यूटन बन जाएगा और नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, सो नो मोशन विल बी सीन। अगर मैं फोर्स 2 न्यूटन लगाता हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा माइनस का, और स्टिल द नेट फोर्स विल बी 0, नो मोशन विल बी सीन। जब तक मैं 10 न्यूटन तक अपने फोर्स को बढ़ाता हूं तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू मैक्सिमम 10 न्यूटन तक कर लेता है, -10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, और यहां तक कोई मोशन नहीं होता। बट व्हेन आई अप्लाई फोर्स ऑफ 11 न्यूटन देन लिमिटिंग फ्रिक्शन या नीस के आगे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन -10 है और अप्लाइड फोर्स +11 है, सो +1 न्यूटन का नेट फोर्स होगा और इसके बदले 1 न्यूटन फोर्स के बदले मुझे मोशन देखने को मिलेगी। सो वी कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच adjust its value according to the applied force from 0 to limiting friction या limiting value. Now we come to the kinetic friction, the friction that comes into play when one surface slides over another is called kinetic friction or friction in motion. जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक्चुअली मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ए कांस्टेंट फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है। साथ साथ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी वंस बॉडी स्टार्ट मूविंग द फ्रिक्शन रिड्यूसेस अ बिट एंड बिकम्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज स्लाइटली लेसर देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या लॉज हैं, लेट अस सी। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू इट, first law, the static friction depends upon the roughness of the two surface in contact. जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनकी रिलेटिव रफनेस डिसाइड करती है स्टैटिक फ्रिक्शन को। नंबर 2, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। दो सरफेस का कितना एरिया कांटेक्ट में है ये इस बात को बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मैंने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है which increases its value, which adjusts its value from 0 to limiting friction. I am once again highlighting limiting friction is the maximum value of static friction and the highest friction of all friction. Limiting friction is the highest friction of all kind of friction. जितने भी फ्रिक्शन होते हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू अगर किसी फ्रिक्शन की तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम ऑफ ऑल फ्रिक्शंस। Number 4, the value of static friction is directly proportional to the normal reaction. Normal reaction के directly proportional होती है value of static friction. Let us see from the figure. I have assumed a body of mass m, एक m mass की बॉडी है किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो इस बॉडी पर पहला फोर्स इसका वेट काम कर रहा है और वेट के परपेंडिकुलर सरफेस से इसको एक रिएक्शन मिल रहा है दैट वी कॉल नॉर्मल रिएक्शन n। अब अगर इस बॉडी को मैं एज इट इज यहां रख दूं तो इस पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। अगर मैं यहां से फोर्स हटा देता हूं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन फ्रिक्शन ऑन द बॉडी विल बी 0। बट व्हेन आई अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स F, ये एक्सटर्नल फोर्स है F जो इस बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है, बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट, देन देयर कम्स अ फ्रिक्शन which develops along the surface in the opposite direction of applied external force that I am calling Fs. तो ये कहता है कि this Fs is directly proportional to this normal reaction, यानी fourth law says Fs is directly proportional to n. While solving proportionality we have assumed Fs equal to mu s times n. Here mu s is called coefficient of static friction and value of mu s is given as mu s equal to Fs upon n. So this is all about the laws of static friction. Now we shall see the laws of kinetic friction. Kinetic friction says the kinetic friction depends upon the roughness of the two surface in contact. जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनकी रफनेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन पे डिपेंड करता है ये kinetic friction. Number 2, kinetic friction does not depend upon the area of contact.
So we can say first two laws for the kinetic and static friction are same. Law number 3, it is a constant force. ये constant force है whose value is slightly lesser than the value of limiting friction. Number 4, the value of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction. Kinetic friction की वैल्यू भी normal reaction के directly proportional होती है, यानी ये weight पे depend करता है. Normal reaction is the reaction to weight, यानी kinetic friction and static friction both depend upon the weight. Now here I am assuming a body of mass m. So the basic force working on the body is its weight mg, and for the counter of this weight, a force works on the body that we call n normal reaction. When we try to exert a force F external force F external, then body move. यहाँ पर मोशन हो रही है, बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, मोशन है यहाँ पर. पहले केस में रेस्ट था, यहाँ पर मोशन है. तो इस मोशन को अपोज करने के लिए अराउंड द सरफेस ए फोर्स डेवलप्स दैट वी कॉल Fk, kinetic friction. This kinetic friction is directly proportional to this normal reaction, so we can say Fk is directly proportional to n, or Fk can be written as mu k into n. Here mu k is called coefficient of kinetic friction, is defined as mu k equal to Fk upon n, यानी kinetic friction divided by normal reaction. This is these are the rules about the kinetic and static friction. Now graphical representation of sliding friction. Sliding friction को graphically हम कैसे represent करेंगे? Let us assume a graph showing the variation of external force and the friction. External force is plotted on x-axis and friction is plotted on y-axis. Initially, when no applied force is there, friction is 0. Let us suppose this is the value of static friction, maximum static friction, that we call limiting friction. ये मेरे पास limiting friction है. Fs max indicates the limiting friction. When value of friction is lesser than limiting friction, as I increase the force, friction will increase in negative direction. So up to limiting value, friction go hand in hand with the external force. यानी ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू. When external force becomes equal to limiting friction, then friction becomes saturated and body try to move. When I increase the force beyond Fs max, then body start moving and friction suddenly gets down. Friction थोड़ा सा कम हो जाता है and becomes constant. So this shows Fk kinetic friction, this shows Fx. यहां से यहां तक का जो स्लोट है ये रेस्ट को दिखाता है, and here onward it is the motion state. यहां से आगे मोशन हो रहा है. तो this is the representation of friction and force. Now let us see the rolling friction. Rolling friction is the friction that comes into play when one surface try to roll over other, or actually rolls. So the friction that comes into play during rolling of one surface over other is called rolling friction. The important things about the rolling friction are, number 1, it is minimum of all kind of friction. जितने भी friction होते हैं सबसे कम वैल्यू rolling friction की होती है. You have seen when one surface is very difficult to slide, then by putting the roller below it, it is easily movable. तो पहिए लगा के हम किसी भी हैवी बॉक्स को इधर से उधर खिसका सकते हैं, बिकॉज द फ्रिक्शन कम्स इनटू द रोलिंग स्टेट. नाउ नंबर 2, इट्स वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ व्हील. व्हील की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोलिंग फ्रिक्शन. जितना बड़ा व्हील होगा उसका फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. नंबर 3, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट, sliding friction does not depend upon the area of contact, but rolling friction do. This is the reason the inflated tires are easy to move, but deflated tires are difficult to move. अगर आपकी कार में, आपके बाइक में पहिए में प्रॉपर हवा है, पूरी तरह से वो inflated है, तो आप उसको बहुत आसानी से चला सकते हैं. But when the air pressure is low or it is totally deflated, इसमें से हवा निकल गई है, तो इसको चलाना मुश्किल होता है, because contact area with the surface बढ़ जाता है. Most important thing about it, it is also known as tractive resistance, and its value depends upon the nature of the surface.
अगर मैं एक स्टील व्हील का स्टील रोड के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करूं तो दैट इज मच स्मॉलर एंड एज स्मॉलर एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -3. It is the reason the railroad are more fuel efficient than the concrete road. तो ये कई बार आपसे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, why the train freight are cheaper than the truck freight. फ्रेट मतलब माल भाड़ा. Coefficient of friction. It is the measure of roughness of a given pair of surface in contact. It is a pure number whose value lies between 0 and 1. The value of friction coefficient is always less than 1 and it may be equal to 1 or it may be equal to 0 or greater than 0. For frictionless surface mu is 0. Frictionless surface के लिए mu की वैल्यू 0 होती है. Now angle of friction क्या है? It is the angle between the normal reaction and the resultant of normal reaction and friction. Let us see once again the figure I am going to make. यहां पर एक बॉडी है जिसका मास मैंने m लिया है. m मास की बॉडी को किसी सरफेस पर मैंने रखा. पहला फोर्स जो बेसिक फोर्स इस पर काम कर रहा है वो है mg. इस वेट के बदले इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है फ्रॉम द सरफेस दैट आई कॉल वेक्टर n. वेक्टर यहां मैंने डायरेक्शन के लिए लिया है. इस बॉडी पर मैंने एक अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स F लगाया. इस F के बदले इस सरफेस पर एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन F काम कर रहा है. यहाँ पर F S भी हो सकता है और F में भी हो सकता है, F K भी हो सकता है, इसलिए मैंने जनरल F लिया है फ्रिक्शन के लिए. दोनों फ्रिक्शन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम होगा. F अब अगर मैं इसको एक वेक्टर है एक वेक्टर ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं फ्रॉम यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो वेक्टर S कम्स एज द रिजल्टेंट. तो बाय डेफिनेशन कहता है एंगल बिटवीन वेक्टर n एंड वेक्टर s इज कॉल्ड कोफिशिएंट एंगल ऑफ कांटेक्ट. Angle n is what? Normal reaction and angle is what? The resultant of normal reaction and the friction. So from figure I can say tan theta equal to BC upon OB. BC upon OB. अब BC एक साइड है. साइड की जो वैल्यू है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन वेक्टर यानी मैं कह सकता हूं वेक्टर F एंड OB भी एक साइड है. OB का जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n यानी मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है. तो tan theta is defined as the ratio between the magnitude of friction and magnitude of normal reaction. But हमें पता है magnitude of friction and magnitude of normal reaction is what? Coefficient of friction हमने laws of friction में देखा था. तो coefficient of friction के इक्वल होगा tan theta यानी we can say tangent of angle of friction is equal to the coefficient of friction. तो this way हम coefficient of friction भी निकाल सकते हैं किसी particular surface का by finding the angle of contact of that surface. Now we come to the next one, that is angle of repose. Angle of repose is the angle for a given inclined plane at which a body starts sliding down under its own weight. So the minimum angle of inclination at which a body starts sliding down under its own weight on an inclined plane is called its angle of repose. Let us see. मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है. इस बार इंक्लाइन प्लेन है. प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है अल्फा. तो इस बॉडी पर एक पहला फोर्स जो इसका बेसिक फोर्स है वो काम कर रहा है. इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. दिस टाइम नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी अपोजिट टू द वेट. नॉर्मल रिएक्शन n विल बी दिस टाइम दिस वे. ये है नॉर्मल रिएक्शन. ये सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी. ये एंगल अल्फा है तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास ये एंगल भी अल्फा आएगा. और अगर मैं अल्फा के टर्म्स में इस mg के कंपोनेंट रिजोल्व करूं तो एक कंपोनेंट होगा जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है. दैट आई कॉल mg cos अल्फा क्योंकि cos कंपोनेंट आएगा. और एक कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आएगा ये होगा mg sin अल्फा. और यही कंपोनेंट इस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करता है बट इसके बदले एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करने लगता है Fs जो स्टैटिक फ्रिक्शन था. जब ये mg sin अल्फा जब तक Fs से छोटा है तब तक बॉडी रुकी रहेगी. लेकिन जैसे ही mg sin अल्फा यानी मैं एंगल बड़ा करूंगा तो sin अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू नीचे आएगी. तो यहां से मैं कह सकता हूं
फ्रॉम फिगर, अगर मैं फिगर से देखूं तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्स में कैसे करूंगा, यहां पर एफ एस ना कह के मैंने इसको सिंपल एफ कहा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं फिगर से देखूं तो मुझे पता है एन इक्वल टू एम जी कोस एल्फा है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है एम जी कोस एल्फा, और ये जो फ्रिक्शन एफ है ये बैलेंस करता है एम जी साइन एल्फा को। जब तक बॉडी रुकी है तब तक एफ जो है एट मैक्स वैल्यू एम जी साइन एल्फा की बराबर होगी, यानी आई कैन से मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एफ अपॉन एन इक्वल्स टू एम जी साइन एल्फा डिवाइडेड बाई एम जी कोस एल्फा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी टेन एल्फा। तो आई कैन से टेन एल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था एफ अपॉन एन वाज नथिंग बट टेन थीटा, तो ये तो टेन थीटा के बराबर था और दैट इज अगेन इक्वल टू म्यू। तो मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज कैन बी रिटन एज एंगल ऑफ रिपोज is equal to the angle of friction. So this is the angle of repose. Now let us see the advantages and disadvantages of friction. There comes a question that friction is a necessary evil. Justify. We can say friction is a necessary evil, or we can say advantages of friction. Friction is very important in our daily life. If there is no friction, then walking on the road or running on the road would have been almost impossible. Just because of friction we can balance ourselves. Number 2, nails and screws would not remain in the wood or walls. हम किसी लकड़ी में किसी दीवार में कील ठोक देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ होता तो वो कुछ इस तरह से बाहर निकल जाता। जैसे पानी में एक पेन डुबो के मैंने खींच लिया, तो जिस तरह से पानी से पेन बाहर निकल जाता है उसी तरह से दीवार से वुड से वो नेल या स्क्रू भी बाहर निकल सकता है। तो फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी पोजीशन में है। नंबर 3, फाइबर्स ऑफ ए रोप वुड नॉट हैव होल्ड टुगेदर। एक रोप के फाइबर्स आपस में एक दूसरे के साथ तभी तक जमे हुए हैं जब तक उसमें फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नोट लगती नहीं। इसकी जो नोटिंग है फाइबर्स या रोप में जो हम नोट लगाते हैं तो इसके फाइबर आपस में एक दूसरे के साथ नहीं अटकते। इट मींस ये नोट पॉसिबल नहीं थी। लैडर वुड नॉट रूट ऑन द ग्राउंड। आप सीढ़ी लगा के जमीन पर जब चढ़ते हैं तो वो इंक्लाइंड होती है, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए तो वो स्लाइड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी और वो अपनी जगह टिकेगी नहीं। तो जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो अपनी जगह टिकती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 5, ड्राइविंग वुड नेवर हैव बीन सो इजी। टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन हमारी ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाता है। इसीलिए देखा होगा कि जब कार में नए टायर होते हैं तो हमें बहुत हद तक टेंशन की जरूरत नहीं होती, हमारी ड्राइविंग बड़ी कंट्रोल में होती है। बट दीज टायर्स आर राउंड, जब ये घिस जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ब्रेक लगाते हुए डर लगता है, रोड पे गाड़ी स्किड करके जा सकती है। तो ड्राइविंग विल बी इजियर इफ फ्रिक्शन इज मोर। लोकोमोटिव इंजन वुड नॉट ड्रॉ द ट्रेन ऑन द रेल्स। पटरियों पर जो इंजन है रेल का वो तब तक ट्रेन को नहीं दौड़ पाता अगर वो जैसे ही चलाने की कोशिश करता और उसके पहिए स्लिप कर जाते, वहां रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन नहीं हुआ होता तो शायद वो उस ट्रेन को खींच ही नहीं पाता। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड पेपर वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप एक पेन से एक पेपर पर, एक चौक से एक बोर्ड पर नहीं लिख पाते। यू डू द एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। आज एक पेपर पे एक ड्रॉप ऑयल टपका देना और फिर वहां पर पेन से लिखने की कोशिश करना कुछ देर बाद जब वो सूख जाए। इट विल नॉट बी रिटन देयर बिकॉज वहां फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन यू कैन बी एबल टू राइट। नाउ द ब्रेक्स वुड नॉट वर्क इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता
तो फिर ब्रेक्स भी काम नहीं करते, और ब्रेक्स भी काम नहीं करते, एक बार फिर हमारी ड्राइविंग अनकंफर्टेबल हो जाती, अनकंट्रोल्ड हो जाती। Thus we can conclude that friction plays a vital role in our daily life and hence it is a necessary evil. Now we come to friction as a evil. Friction is an evil or disadvantages of friction. हमें पता है फ्रिक्शन ऑलमोस्ट अपीयर्स एज एन इविल इन आवर डेली लाइफ। हम आमतौर पर फ्रिक्शन को एक इविल की तरह ही देखते हैं। मैक्सिमम टाइम हम फ्रिक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। इट कॉजेज लॉस ऑफ यूजफुल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का बहुत लॉस होता है क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स फाइटिंग फ्रिक्शन खर्च हो जाता है। दिस मीन्स ए लॉट अमाउंट ऑफ यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन फाइटिंग फ्रिक्शन। नंबर 2, इट कॉज हीटिंग। जब दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उनमें हीटिंग होती है, और हमें पता है हीटिंग ऑलवेज रिड्यूसेस द लाइफ। जब हीटिंग होती है तो वो किसी भी मैकेनिकल पार्ट की, किसी भी मशीन की लाइफ को कम कर देती है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीटिंग होती है वो लाइफ को रिड्यूस करती है, वेयर एंड टेयर के चांसेस बढ़ा देती है, इलास्टिसिटी को रिड्यूस करती है। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी माइलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये ऑटोमोबाइल्स की एफिशिएंसी को, उनकी माइलेज को कम करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी कार्स की माइलेज बहुत ज्यादा होगी। ऑल्दो ड्राइविंग विल नॉट बी इजी, बट फिर भी फ्रिक्शन की वजह से माइलेज कम रहता है। नंबर 4, इट कॉजेज वेयर एंड टेयर इन द मशीन पार्ट्स, क्लॉथ्स, फुटवेयर, टायर्स एटसेट्रा। हमारे शूज घिस जाते हैं, हमारे कपड़े घिस जाते हैं, कार के टायर घिस जाते हैं, या मशीन के पार्ट घिस जाते हैं कुछ साल बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आपस में जब पार्ट्स रगड़ते हैं तो उनमें वेयर एंड टेयर होता है, टूट फूट होती है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन मेक्स एनी मोशन डिफिकल्ट। ये किसी भी मोशन को मुश्किल बना देता है। सो दिस वे वी कैन से फ्रिक्शन अपीयर्स एज एन इविल इन आवर लाइफ इन मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। Now the methods to reduce friction. It is almost impossible to make friction zero. So we can minimize friction by doing following methods. So various methods to reduce friction are: number 1, by polishing, painting of a surface. किसी भी सरफेस की स्मूथनिंग करके, उसको पॉलिश करके, उसको पेंट करके हम उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, उसकी जो रेगुलरिटीज है उनको कम करते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाता है, इंटरलॉकिंग घट जाती है। बाय लुब्रिकेटिंग द सरफेस, सरफेस को लुब्रिकेट करके उस पर या तो हम ऑयल लगाते हैं, या घी लगाते हैं, या क्रीम लगाते हैं, या फिर हम ग्रीस लगाते हैं, तो ये सब लुब्रिकेशंस में आते हैं। और लुब्रिकेशन से चिकनाई जिसको हम बोलते हैं, लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम होता है। दैट्स वाई जो मोशन है वो इजियर हो जाता है। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप्स, शेप्स को हम स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप कुछ ऐसी होती है जैसी बोट की होती है, जैसी एरोप्लेन की होती है, यानी द शेप लाइक दिस जिसमें शार्प टर्न ना हो, ऐसी शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो स्ट्रीमलाइनिंग शेप से भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, क्योंकि वो एयर को पुश बैक ना करके वो एयर को डाइवर्ट करता है। तो जस्ट डाइवर्टिंग एयर और वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, तो बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप्स। इसलिए आपने देखा होगा एरोप्लेन स्ट्रीमलाइन बनाए जाते हैं, चपटे नहीं बनाए जाते। बोट्स और शिप्स जो पानी में चलते हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में होते हैं। नेक्स्ट, बाय यूजिंग रोलर्स और बॉल बियरिंग्स, हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम ऑफ ऑल फ्रिक्शन। सो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलर्स या बॉल बियरिंग्स लगा के स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड दिस वे वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन टू लार्ज एक्सटेंट। एट लास्ट, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है जब एक स्टील बॉल को, एक स्टील पार्ट को एक अलॉय पार्ट के ऊपर स्लाइड कराया जाता है तो इसका फ्रिक्शन बहुत हद तक कम हो जाता है, एज कंपेयर टू द सेम स्टील पार्ट इज स्लाइडेड ओवर रबर पार्ट और ए स्टील पार्ट इटसेल्फ। सो हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मशीन पार्ट्स में जब दो मेटल पार्ट्स होते हैं उनमें अलॉय की लाइनिंग की जाती है। अलॉय लाइनिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू पार्ट्स। तो दिस इज द वे we can reduce friction. So this is all about in today's class. Thank you and thank you for watching. Have a good day.